everyone, welcome to the channel. कैसे हैं सभी? I hope सभी अच्छे हैं. I am Shweta, your English teacher, and I hope you all are absolutely fine. Today we are going to read the chapter The World of Limitless Possibilities, which is a chapter from the book Kaveri, which is a new textbook of class 9. Great chapter, great journey, great moral. Have you ever wondered that physical challenges can stop a person achieving his goal, achieving success? After reading this chapter, you definitely can say no, because this chapter tells us about the motivational journey, the great journey of Dr. Deepa Malik, the first female Paralympic medalist. Dr. Deepa Malik's story tells us that no matter how many difficulties we are facing in life, but if you are determined, if you have positive attitude, you can definitely achieve success in your life. Yes, so let's get started with the chapter The World of Limitless Possibilities. First of all, let's read the summary of the chapter. The chapter, The World of Limitless Possibilities, is an inspiring lesson that highlights resilience and the triumph of human spirit over physical adversity. हमारा जो चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, वो एक इंस्पायरिंग लेसन है जो बताता है कि रिजिलियंस और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे फिजिकल एडवर्सिटी के होते हुए भी एक पर्सन को कैसे सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है. It explores the life and achievements of Dr. Deepa Malik, a prominent Indian para-athlete who defied societal stereotypes to build a remarkable legacy of success. ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर दीपा मलिक, जो एक प्रोमिनेंट इंडियन पैरा एथलीट है, उनके लाइफ और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है. डॉक्टर दीपा मलिक जिन्होंने जो सोसाइटल स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है उसको हराते हुए एक नया एक रिमार्केबल स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया है. Dr. Deepa Malik's story took a turning point at age 29 when spinal tumor left her paralyzed from the waist down and wheelchair bound. डॉक्टर दीपा मलिक जब 29 इयर्स की थी तब उनको स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोज होता है और वेस्ट से नीचे का सारा हिस्सा उनका पैरालाइज्ड हो जाता है एंड शी वाज बाउंड to sit on wheelchair for the rest of life. Rather than succumbing to sorrow, she chose a path of courage by stepping into the world of para-athletics. अब उनके पास दो ऑप्शन थे. या तो वो बैठ के जिंदगी भर रोती कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूं, दूसरों के भरोसे जिंदगी काटती, कोई खिला देता, कोई ला के कमा के ला देता तो चल जाता काम. या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जैसी भी है, जो भी है, अपनी सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ की प्रॉब्लम्स का सामना करती है. तो डॉक्टर दीपा मलिक ने क्या चूज किया? पाथ ऑफ करेज उन्होंने चूज किया. हर डेडिकेशन लेड हर to become India's first female Paralympic medalist. अगर वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर रोती रह जाती तो शायद ये कभी हासिल नहीं कर पाती. She is the first female Paralympic medalist.
winning a silver medal at the 2016 Rio Paralympics alongside numerous prestigious honors like the Padma Shri and Khel Ratna. बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स लिए हैं किसने? डॉक्टर दीपा मलिक ने. Ultimately, the chapter uses her journey to emphasize the concept of ability beyond disability. Disability से आगे भी जो abilities होती हैं, ऐसी abilities जो आपकी disability को, जिनके लिए आपकी disability कोई मायने ही नहीं रखती, right? It powerfully demonstrates that physical limitations do not define a person's potential, and that with strong willpower and perseverance, individuals can overcome the most daunting obstacles to achieve extraordinary goals. मतलब किसी भी पर्सन की जो फिजिकल लिमिटेशंस है वो उनके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती. ठीक है, ज़रूरत क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, दैट्स इट. और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती है, राइट? चलिए इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. Ever wondered what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? कभी सोचा है क्या होता है जब जो हमारे अद्भुत एथलीट्स होते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को हराते हुए, अपने एक्सेप्शनल स्किल्स को दिखाते हुए एक ग्लोबल स्टेज पर पहुंच जाते हैं? Well, enter the world of Paralympic Games, a thrilling celebration of resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor, sensory और intellectual disabilities. चलिए एंटर करते हैं पैरालंपिक गेम्स के वर्ल्ड में, जो एक थ्रिलिंग सेलिब्रेशन है किसका? रेजिलियंस का. ना व्हाट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस होता है द पावर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स को जो बहुत जल्दी, बहुत नॉर्मलाइज करके ओवरकम कर जाते हैं. दैट क्वालिटी इज कॉल्ड रेजिलियंस. एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ एथलीट्स विद लोकोमोटर, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. लाइक लोकोमोटर होती है जो आपके जॉइंट्स से, आपकी बोन्स से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, तो मतलब किसी भी तरह की डिसेबिलिटी जो हमारी नज़र में डिसेबिलिटी है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, लेकिन उन सब को ओवरकम करके अपना एक्सेप्शनल टैलेंट जो हमारे एथलेटिक्स एथलीट्स हैं वो हमें दिखाते हैं पैरालंपिक गेम्स में. Paralympics go beyond competition to quell stereotypes and redefine possibilities. Paralympics कंपटीशन से बहुत आगे निकल के स्टीरियोटाइप थिंकिंग को रीडिफाइन करते हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज लेकर आते हैं. ठीक है, जब लोगों के माइंड में बैठ जाता है अरे इसके साथ तो ऐसा होगा, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे में जब अपना टैलेंट जब लोग वहाँ पर शो करते हैं. Bharat's debut in the Paralympics dates back to 1968 and the first medal was clinched in swimming in 1972. भारत ने पैरालंपिक्स में डेब्यू किया कब? 1968 में. और फर्स्ट मेडल जो लिया वो 1972 में लिया. किसमें? स्विमिंग में. Since then, many Indian Paralympians have brought incredible honor to our country. और उसके बाद बहुत सारे पैरालंपियंस ने हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे जो अवार्ड हैं वो लिए हैं, बहुत सारे मेडल्स लिए हैं. One such Paralympian, Dr. Deepa Malik, a Khel Ratna, Arjuna and Padma Shri awardee, has left an indelible mark on innumerable aspiring athletes. इसी तरह से एक पैरालंपियन कौन? डॉक्टर दीपा मलिक. खेल रत्न, अर्जुन, पद्मश्री, इस तरह के अवार्ड लेकर के उन्होंने एक ऐसा मतलब एक मुकाम जो बनाया है बहुत सारे पैरालंपियंस के माइंड में, उनके हार्ट में और हजारों लोगों के दिलों में. फाइन.
Okay. Now read the following interview. Actually, this chapter is in the form of an interview. This is the interview of Dr. Deepa Malik. कौन है डॉक्टर दीपा मलिक? आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हर. डॉक्टर दीपा मलिक एक फर्स्ट फीमेल पैरालंपियन मेडलिस्ट रही हैं, जिनको खेल रत्न भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है. ठीक है, तो जिनको क्या हो जाता है, हमने देखा कि उनको देखो क्या एक प्रॉब्लम, एक ट्यूमर डायग्नोज होता है और वहाँ से उनका जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाता है. तो अब उनके पास क्या था कि या तो वो पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही निकालने वाली थी दूसरों के भरोसे, या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ अलग, कुछ अच्छा करने वाली थी. और उन्होंने प्रूव किया और उन्होंने ऐसे ऐसे मेडल, ऐसे ऐसे अवार्ड लिए जिनको कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है. तो ये उन्हीं के इंटरव्यू हैं. इंटरव्यूअर: नमस्ते मैम, it is my privilege to have this opportunity to meet a famous personality in the world of Paralympics such as you. इंटरव्यूअर ग्रीट करते हैं डॉक्टर दीपा मलिक को, कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं इतनी फेमस पर्सनालिटी के सामने बैठकर, मतलब मैं उनसे बात कर रहा हूँ जैसे कि आप. डॉक्टर दीपा मलिक: नमस्ते. बिलीव मी, आई एम ट्रूली ऑनर्ड. दीपा मलिक उनका ग्रीट एक्सेप्ट करती हैं और कहती हैं, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में बहुत आदर सम्मान मिला. इंटरव्यूअर: यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन para athletes globally by the International Paralympic Committee. How did you brave the odds to be who you are today? इंटरव्यूअर कहते हैं कि वर्ल्ड की जो 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल पैरा एथलीट विमेन हैं, उनमें से आपका नाम है. ठीक है, जो लिस्ट इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने बनाई है वर्ल्ड की 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन की, उनमें से एक आपका नाम है. तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया और आज जो आप हैं वो कैसे हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? डॉक्टर दीपा मलिक अब बताती हैं, आई वॉज 29. An awful tragedy struck me when I was diagnosed with spine tumor. मैं सिर्फ 29 ईयर्स की थी और एक ट्रेजेडी ने मुझे तोड़कर एक बार झकझोर के रख दिया. क्या? कि उनको स्पाइन ट्यूमर डायग्नोस हुआ. I underwent a surgery but misfortune raised its ugly head again. मेरी सर्जरी हुई लेकिन दुर्भाग्य ने एक बार फिर से सर उठाया. The doctors declared that I would be bound to a wheelchair for the rest of my life as I was paralyzed waist down. तो कमर से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको बाकी की सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही बितानी पड़ेगी. I had 2 choices: squander my life in remorse or transform it to a world of limitless possibilities. अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो बैठ के रोती रहूं, पछताती रहूं, या कुछ ऐसा करूं, ठीक है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दूं लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज में. I love sports and had been a swimmer too, so I decided to switch to para-athletics. मुझे स्पोर्ट्स पसंद है और मैं एक स्विमर भी रही हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी, पैरा एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करूँगी. दिस इज हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगिन. और इस तरह से मेरी पैरालंपिक्स जो जर्नी है वो शुरू होती है. माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2016 Rio Olympics Games when I secured the silver medal in the shot put event.
वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ब्रेक थ्रू था जब 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स में मुझे सिल्वर मेडल मिला। किसमें? शॉट पुट में। इन hindsight, I feel it was a moment of personal victory and a step forward in the changing perceptions. यहाँ से मुझे फील हुआ कि ये मेरी विजय है, ये मेरी जीत है और यहाँ से मुझे आगे चलना होगा कि परसेप्शन को चेंज करना होगा, अपना भी और लोगों का भी। जब कोई भी पर्सन किसी भी तरह से मजबूर हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, वेदर इट्स मेंटली और फिजिकली, ठीक है, तो देखने वालों को एक चीज़ पहले समझ में आती है, सबसे पहले आते हैं अब तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, हिम्मत देने कोई नहीं आता है ना। इंटरव्यूअर, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, द फर्स्ट एवर Indian female para-athlete to win an Asian Games medal in athletics. आप क्या हैं? आप एक ट्रेल ब्लेजर हैं, ठीक है। आप क्या कर रही हैं? आप फर्स्ट इंडियन वुमेन है पैरा एथलेटिक की जिन्होंने एशियन गेम्स मेडल जीते हैं। यू आर ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट ever female Paralympics medalist across any sport and the list of first is never ending. आप फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं और ये जो फर्स्ट वाली लिस्ट है वो बहुत लंबी है। You have been bestowed with several coveted awards too. What do these accomplishments mean to you? आपको बहुत सारे और भी अवार्ड मिले हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या मायने रखती हैं? डॉक्टर मलिक कहती हैं, I truly appreciate these accolades that have been showered on me. मैं बहुत appreciate करती हूँ इस प्यार को, इस सम्मान को जो मुझे मिला है। These achievements are a testimony to my belief that physical limitations don't define one's potential. ये जो achievements हैं ये testimony है मेरे मतलब जो मेरा belief था, जो मैं मानती थी कि जो physical limitations हैं वो आपकी पोटेंशियल को नहीं दिखाती हैं। आपका कैलिबर, आपकी पोटेंशियल, आपकी फिजिकल जो चैलेंजेस हैं वो आपको नहीं रोक सकते हैं इफ़ यू आर डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर गोल। Moreover, I am proponent of the school of thought ability beyond disability. मतलब मैं क्या चीज़ को मानने वाली हूँ? मैं मानती हूँ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी को, कि डिसेबिलिटीज से आगे भी एबिलिटीज होती हैं, राइट। Interviewer, that's incredible. Could you share something about the challenges you faced in your journey and how you overcame them? ये सच में अद्भुत है। क्या आप प्लीज़ कुछ चीज़ें शेयर कर सकती हैं कि कैसे कैसे आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम आई, आपने उनको फेस किया, कैसे आपने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स को आपने ओवरकम किया। डॉक्टर मलिक, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वो सोसाइटल परसेप्शन। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सोसाइटल परसेप्शंस। एज आई टोल्ड यू कि कोई भी हिम्मत नहीं देता, आके सब क्या कहेंगे कि आप तो कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। तो वो एक जो माइंडसेट बना होता है लोगों का। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज। लोगों ने मेरी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया, नहीं समझा, है ना। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रेजिलियंस। तो इन सब से ओवरकम करने में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए थी, मेंटल रेजिलियंस भी चाहिए था कि ये लोग जितना मतलब रोकेंगे मुझे उनसे ओवरकम होना ही होना है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाली बात होती है। सो आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज। तो मैंने चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किया और अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली coupled with my
fortitude allowed me to turn obstacles into stepping stones. मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तो जो फैमिली का सपोर्ट था और जो मेरा जो मेरी किस्मत थी, दोनों ने मुझे ऑब्स्टिकल्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाने में हेल्प की. Interviewer, your story is indeed a testament to the power of determination. How do you believe sports and Paralympics can contribute to challenging societal stereotypes? What has been the impact of Paralympics in your life? आपकी जो कहानी है वो एक टेस्टामेंट है, दिखाती है कि डिटर्मिनेशन की पावर क्या होती है. आप स्पोर्ट्स और पैरालंपिक्स में आपको क्या लगता है कि ये जो चैलेंजेस जो हैं, सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स जो हैं, इनमें कितना क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ? पैरालंपिक्स होने का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया है? कहने का ये है कि ये जो आपकी लाइफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टामेंट है डिटर्मिनेशन की पावर को दिखाने का. आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं चैलेंज सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स को चेंज करने में, क्या ये रियल में कंट्रीब्यूट करते हैं? आपकी लाइफ में पैरालंपिक्स होने का क्या इम्पैक्ट रहा है? डॉक्टर मलिक कहती हैं, ऑनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स स्पेशली पैरालंपिक्स have the extraordinary ability to challenge stereotypes and change attitudes towards disability. सच बताऊं तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स स्पेशली पैरालंपिक्स में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होती है स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने की, और लोगों का जो माइंडसेट है डिसेबल लोगों के प्रति उसको चेंज करने की. When people witness the strength, skill and competitive spirit of parathletics, it breaks down preconceived notions. जब लोग देखते हैं ताकत, वो स्किल्स और वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैराथलेटिक्स की तो वो जो दिमाग में उनकी जो पुरानी जो चीज़ें चल रही आ रही होती हैं वो अपने आप छूट जाती हैं. Paralympics has given me a new lease of life and helped me push boundaries. Paralympics ने मेरी लाइफ को एक नया फेस दिया है और मुझे बाउंड्रीज को पुश करने का चांस दिया है, मौका दिया है. It has made me what I am today. ये इन्होंने ही मुझे बनाया है आज मैं जो भी कुछ हूँ. It has made me realize that individuals with disabilities can be as capable, if not more than their able-bodied counterparts. इसने मुझे समझाया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जो किसी भी तरह से डिसेबल होते हैं वो भी इतने कैपेबल हो सकते हैं. अगर प्रॉपर आप ये लगाओ कि नॉट फॉर द होल बॉडी, चाहे काउंटर पार्ट्स ही सही, लेकिन हाँ वो भी एबल होते हैं, उनमें भी कैपेबिलिटी होती है, वो भी कुछ कर सकते हैं. इंटरव्यूअर, beyond the medals, you have become vocal for inclusivity and accessibility. How do you see your role in advocating for disability rights and inclusivity? अगर मेडल से आगे की बात करूं, आप आज इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी की आवाज़ हैं. आपको क्या लगता है कि डिसेबल लोगों के जो राइट हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर दीपा मलिक कहती हैं, एडवोकेसी इज इंटीग्रल टू माई मिशन. एडवोकेसी मेरे मिशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है. I strongly believe in working for the cause of strengthening the emotional health of persons with challenges and empowering women through outdoor sports and adventure activities. मैं strongly believe करती हूँ कि किसके लिए? For the cause of strengthening the emotional health. Person with challenges and empowering, जो लोग किसी भी तरह से challenged हैं उनको मजबूत बनाने में मैं बिलीव करती हूँ. ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट में मैं बिलीव करती हूँ.
आउटडोर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एम्पावरमेंट लेकर आ सकूँ। I also support persons from lower socio-economic strata and provide equipment to para sports person। मतलब जो हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, मतलब जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक में लोग आते हैं, उनको भी मैं हेल्प करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ, और उनको जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनमें से उनको मैं जो उनके रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं उनके लिए इक्विपमेंट्स में प्रोवाइड उनको कराती हूँ। I believe youth is the voice of tomorrow, so we organize disability sports awareness and advocacy sessions at various schools and colleges। मतलब मेरा मानना यह है कि जो हमारा यूथ है वो हमारा कल है, तो हम क्या करते हैं, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग स्कूलों में और कॉलेजेस में। My goal is to contribute to create a society where everyone regardless of ability is treated with dignity and given a fair chance to succeed। मेरा गोल क्या है कि कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी के ऐसी जगह पर कंट्रीब्यूट करना जहां पर हर कोई बराबर हो, रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी और डिग्निटी, सब बराबर हो, सबको एक फेयर चांस मिले, सब को सफल होने का चांस मिले। इंटरव्यूअर, लास्टली व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग चैलेंजेस और सेटबैक्स, especially those with disabilities who aspire to achieve their goals। लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहूँगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो किसी तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो जो डिसेबल हैं और जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। सो डॉक्टर मलिक कहती हैं, आई वुड से एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। वो कहते हैं कि हर सेटबैक एक मौका है, उसको एज अ प्रॉब्लम मत देखो, उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखो। एज एन अपॉर्चुनिटी जब आप उसको देखोगे तो आप मतलब उसको वहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने का मौका मिलेगा। सराउंड योरसेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम, बिलीव इन योरसेल्फ एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स। अपने आप को एक सपोर्ट सिस्टम से सराउंड रखो, अपने आप में विश्वास करो और फिर अपनी जर्नी को दूसरों को इंस्पायर करने के लिए चलने दो। रिमेंबर, डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन, इट्स अ यूनिक स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी अनलीस्ड। डिसेबिलिटी क्या है? कोई लिमिटेशन नहीं है, ये एक अलग मौका है, ये एक अलग ताकत है जो वेट कर रही है कि उसको कब अनलीश किया जाए, कब उसको पर्दे से बाहर निकाला जाए और उसको शोकेस किया जाए। इंटरव्यूअर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, योर स्टोरी इज अनडाउटली इंस्पिरेशनल। इंटरव्यू कहते हैं कि आपने जो स्टोरी है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको हमारे सामने शेयर किया, हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो कहानी है वो सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। डॉक्टर मलिक कहती हैं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सच में एक बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप चैप्टर सभी को समझ में, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर छोटा सा ही है। हाँ, कुछ वर्ड हैं जो उसमें डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपकी बुक्स में सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। स्टिल आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब बात आती है एक्सरसाइज और एक्टिविटी की, तो चलिए अब हम इसकी एक्टिविटी करते हैं। फिल इन द facts table given below based on the interview with Dr. Deepa Malik. Discuss your answers with your classmates and teachers। ये एक्सरसाइज है एक्चुअली, ये आपको खुद ही करनी थी, but still I have done it for you। Diagnosed with spinal tumor at the age of, कौन सी एज में उनको स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोज हुआ था? It was
द एज ऑफ 29 ईयर्स की थी वो जब उनको ट्यूमर डायग्नोज हुआ, और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई और ज़्यादा, तो उसके बाद उनको कहा गया कि रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको अब व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। रिजल्ट ऑफ द सर्जरी का क्या रिजल्ट आया कि वो वेस्ट डाउन, कमर से नीचे का उनका पूरा हिस्सा क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, और उनको व्हील चेयर पे रहना पड़ता पूरी लाइफ के लिए। नेम्ड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इफेक्टिव पैरा एथलेटिक्स बाय, किसने जो वो लिस्ट का जो हमने चैप्टर में जिक्र किया है कि आप उन 10 लोगों में से एक हैं, उन 10 विमेन में आप एक हैं, तो ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने बनाई थी। फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट, डॉक्टर दीपा मलिक का फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट कब था? 2016 रियो पैरालंपिक में, जिन्होंने उन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल, किसमें? शॉर्ट पुट में, है ना। नेक्स्ट वन, लिस्ट ऑफ फर्स्ट। अभी उन्होंने कहा ना कि ये फर्स्ट की लिस्ट जो है नेवर एंडिंग है, ये खत्म नहीं हो रही है। तो फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स, फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट्स। अभी ये बहुत है आई थिंक। अवार्ड्स 1, खेल रत्ना, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। 2 things supported by her, emotional health and empowerment of persons with channel, मतलब जो फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं या जो कि किसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो इमोशनली सपोर्ट देती हैं। दूसरा क्या करती हैं कि जो फिजिकली चैलेंज हैं और उनमें से जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए वो इक्विपमेंट भी उनको प्रोवाइड कराती हैं, प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एंड सपोर्ट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। ठीक है, सो दिस वाज वन एक्टिविटी फॉर यू। नेक्स्ट, read the 2 sets of sentences given below. Choose whether the given statements display fact, opinion or cause effect. इसमें से देखो हमारे पास 2 सेट हैं, इनमें से कौन सा एक फैक्ट ओपिनियन है, ठीक है, हमें बताना है कि एक फैक्ट ओपिनियन है और एक कॉज इफेक्ट है। तो इन दोनों में से कौन सा क्या है? देखो, इन द 2016 Rio Paralympic Games, I secured the silver medal in the shot put event. I feel it was a moment of personal victory and step forward in changing perceptions. तो आप देखो क्या हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं। I was diagnosed with a tumor in my spine. I had a surgery and was told that I would be bound to wheelchair for the rest of life. तो ये है, ये I think मेरे हिसाब से ये फैक्ट और इसका ओपिनियन हो सकता है ना। कॉज इफेक्ट, कॉज, हाँ, ये हमारा फैक्ट ओपिनियन जाता है और ये कॉज इफेक्ट। कारण क्या था कि उनको डायग्नोज हुआ था ट्यूमर, जिसका इफेक्ट क्या आया कि उनको फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ व्हील चेयर पे रहना पड़ा। तो ये हमारा कॉज इफेक्ट जाएगा और ये आ जाएगा बेटा हमारा फैक्ट ओपिनियन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, नाउ क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर मलिक्स अचीवमेंट्स चैलेंज सोसाइटल परसेप्शन। सोसाइटल परसेप्शंस को कैसे डॉक्टर दीपा मलिक की जो अचीवमेंट्स हैं कैसे उनको चैलेंज करती हैं। लाइक उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी थिंकिंग ये थी कि मैं इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव करूं। ठीक है, तो कैसे सोसाइटल परसेप्शंस को चेंज करती हैं डॉक्टर दीपा मलिक की अचीवमेंट्स। ओके, द आंसर इज डॉक्टर दीपा मलिक्स अचीवमेंट्स पावरफुली shatter the deeply ingrained societal stigma that disability limits a person's capability. By becoming India's first female Paralympic medalist, Rio 2016 shot put, she proved that wheelchair users can achieve elite athletic excellence, redefining societal views on strength,
resilience and inclusivity. डॉक्टर दीपा मलिक की जो अचीवमेंट्स हैं सच में बहुत पावरफुली शैटर करती हैं कि जो लोगों का जो स्टिग्मा है, जो एक माइंडसेट है कि डिसेबल पर्सन लाइक किसी भी तरह से अगर डिसेबिलिटी आ गई है तो अब वो किसी लायक नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को वो चैलेंज करती हैं और उनकी वो जो एक सोच है उसको पीछे छोड़ देती हैं. ओके, फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक जब वो बन जाती हैं पैरालंपिक मेडलिस्ट, कब? जब 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल लिया. ठीक है ना, किस में लिया था सिल्वर मेडल? उन्होंने शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल लिया था. ठीक है, शी प्रूव्ड दैट व्हील चेयर यूजर्स कैन अचीव लाइट एथलेटिक एक्सीलेंस, कि व्हील चेयर पे भी लोग क्या है, अचीव करते हैं एक्सीलेंस को. रीडिफाइनिंग सोसाइटल व्यूज ऑन स्ट्रेंथ, resilience and inclusivity. Her success as a trailblazer shifts the narrative from one to remorse or pity to one of admiration for strength, skill and competitive spirit. Effectively using her accolades as stepping stones to show that people with challenge can achieve extraordinary feats. लोगों की जो थिंकिंग है उसको चेंज करती हैं. अपने आप एक ट्रेल ब्लेजर, मतलब जिन्होंने एक अपने आप को इस वे में क्या कहते हैं साबित किया है, एक ट्रेंड को बनाने वाला पर्सन, एक पथ प्रदर्शक. ठीक है, तो मतलब एक ट्रेंड को सेट करने वाला पर्सन, ट्रेल ब्लेजर. ठीक है, तो या तो रिमोर्स में, दुख में और परेशानियों में अपनी ज़िंदगी बिताती या फिर अपने आप को साबित कर देती. तो यहाँ से उन्होंने एक वो ट्रेल ब्लेजर वो बनी कि हाँ, कि मैं मैं नहीं, मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी भी तरह से डिसेबल है वो भी अपने गोल को अचीव कर सकता है. What can be the long-term impact of involving youth in schools and colleges in advocacy with respect to disability? Involving youth in disability advocacy creates lasting systematic change. यूथ को इसमें इंक्लूड करना मतलब उसका एक इम्पैक्ट क्या जाता है. Since Dr. Deepa Malik believes that youth is the voice of tomorrow. डॉक्टर दीपा मलिक क्या मानती थी कि जो हमारा आज का यूथ है वो कल की आवाज़ है. Teaching students about disability early on helps break down old wrong ideas and preconceived notions. It empowers disabled students with essential life and leadership skills, boosts inclusive campus cultures, and develops a new generation of informed policymakers and empathetic professionals who champions universal accessibility in the future. मतलब कि जो डॉक्टर दीपा मलिक है उनका मानना ये था कि यूथ को इंक्लूड करना बहुत अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि यूथ हमारे कल की आवाज़ है. ठीक है, तो जो न्यू जनरेशन है उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, उनमें एक नया जोश होता है, जुनून होता है जो हमारे आज को और कल को समझ सकते हैं. तो इस वे में डॉक्टर दीपा मलिक क्या है, यूथ को इंक्लूड करने की बात करती हैं. नेक्स्ट वन इज रेशनलाइज द एप्रोप्रिएटनेस of the title of this text with reference to Dr. Deepa Malik's attitude and achievement. चैप्टर का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करेंगे. The title World of Limitless Possibilities is entirely appropriate for Dr. Deepa Malik's story. बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. क्यों है? As it reflects her refusal to accept societal boundaries. मतलब जो एक कहते हैं ना लिमिट, वर्ल्ड ऑफ लिमिट्स है ना, लेकिन उसको लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज में उन्होंने चेंज किया. When Dr. Deepa Malik was told she would spend her life in a wheelchair, she refused to let her physical condition set boundaries for what she could do. मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थी ही उन्होंने, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स मुझे रोक सकती हैं, ये फिजिकल जो डिसेबिलिटी है ये मुझे रोक सकती है. नहीं, उन्होंने अलाउ नहीं किया. Instead of living in remorse or sadness, she chose to transform her situation and explore her talents, as she had been a swimmer earlier and later took up sports like shot put. She turned a life-altering disability into a platform for historic global achievements. बार बार सेम लाइन कि या तो
सारी जिंदगी दुख में, परेशानी में सोच सोच के निकाल देती, या एक ऐसा काम कर दिया उन्होंने कि शी हैज़ बिकम अ ट्रेल ब्लेजर। तो चॉइस हमेशा हमारी होती है, वेदर उसके जो रिजल्ट हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी चॉइस कैसी थी, बट चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो आपकी चॉइस है ना, वो एक बार चूज करना ही डिफिकल्ट है ना। नाउ एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। हाउ माइट दिस बी अ लाइफ लेसन फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड नॉट जस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। जो एक स्टेटमेंट दीपा मलिक ने दी है कि एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाने की का मौका होती है हर एक प्रॉब्लम, हर परेशानी, ठीक है। तो कैसे, मतलब ये एक लाइव लेसन है हर किसी के लिए, सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए। The life lesson, every setback is an opportunity to prove your strength, reminds us that adversity is a chance for personal growth rather than dead end. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है, वो पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वहां जिंदगी खत्म हो, वहां से शुरुआत भी हो सकती है। When faced with a crisis such as failed exam, a career loss, or an unexpected health issue, this mindset teaches us to channel disappointment into resilience, determination, and innovative problem solving. Dr. Deepa Malik's life is the ultimate testament to turning adversity into showcase of strength. Her attitude emphasizes that ability beyond disability is a mindset. Her legacy demonstrates that when individuals embrace the reality of their setbacks, they can change societal perceptions and reach heights they once thought impossible. मतलब फेल हो गए, सुसाइड कर लिया, नौकरी नहीं मिली, सुसाइड कर लिया, है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिसीज डायग्नोज हो गया, या कुछ भी मतलब ऐसा हो गया, तो क्या होता है कि मोस्टली लोगों की, मैं अभी के आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल की जो मैं बात कर रही हूँ, कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बस अब जिंदगी खत्म है ना। मैंने देखा अभी पीछे थोड़े दिन पहले कोटा का एक वीडियो, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, और मैंने एक वीडियो देखा कि वहां पर फैंस के ऊपर ना नेट लगा दी गई है। क्यों? तो ये ही सिर्फ एक रास्ता नहीं है कि मम्मी पापा ने डांट दिया जाके सुसाइड कर ली, टीचर ने कुछ कह दिया जाके सुसाइड कर लिया। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल सिर्फ यही ऑप्शन क्यों है बच्चों के पास। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव की तरफ ही चलें, हमारे पास पॉजिटिव भी बहुत कुछ है, और उस पॉजिटिविटी से आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं वो तो हम सोचना ही नहीं चाहते। मतलब हाल ऐसा है कि टीचर ने कुछ कह दिया तो खत्म है मामला, मम्मी पापा ने कुछ कहते, अरे पेरेंट्स बच्चों को डांटते हुए डर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कहां तक बोलूं कि बीइंग अ टीचर आई एम रिसीविंग सच कमेंट्स कि मैम आप उसको मत बताना कि मैंने आपको बताया है। I didn't want to reveal that thing, but as the chapter is relatable, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उसको मत बताना कि मैंने आपको बताया। Why? आप क्या परवरिश कर रहे हो अपने बच्चे की? आप अपने बच्चे से डर रहे हो, तो इट मीन्स आपने उसको मेंटली स्ट्रांग बनाया ही नहीं है। अगर आपको एक टीचर को भी कंप्लेन करते हुए डर लग रहा है, टीचर को आगे कंप्लेन करते हुए डर लग रहा है कि बच्चा कुछ कर ना ले, इट मीन्स दैट चाइल्ड इज मेंटली वीक। और मेंटली स्ट्रांग किसने नहीं बनाया? आपने नहीं बनाया है। आप अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि बेटा प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमने भी झेली है, हम भी झेल रहे हैं, तुम भी झेल लो। हमारे पास तो ऐसे स्कूल नहीं थे कि हम एसी के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, या हमें सब कुछ ऐसे मिल रहा है, यूट्यूब से पढ़ लिया, गूगल से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, फिर भी हम पढ़े हैं ना, फिर भी आज हम सक्सेसफुल हैं ना। तो ये चीज़ें सबकी लाइफ में आती हैं, तुम्हारी में भी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको फेस करो। बट नहीं, हमारे बच्चे को तो बस हवा ना लग जाए कहीं इधर उधर से। तो चलो, वॉट एवर इट इज, द थिंग इज
कि हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी होता है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एज द आंसर सेज कि एग्ज़ाम में फेल हो जाना या करियर लॉस हो जाना या कोई भी अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू आ गया, तो इस तरह से क्या है कि आप उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि चलो हो गया जो हो गया, आई कैन चेंज इट बट येस आई कैन चेंज रेस्ट ऑफ माई लाइफ। या तो मैं बैठ के रोऊं या मैं अपने आप को कुछ ऐसा साबित करूं। और आज के टाइम में तो देयर आर लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज, आज तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले लिमिटेशंस थी, आज तो लिमिटेशंस है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन हाउ डॉक्टर दीपा मलिक's recognition as one of the 10 most inspirational para-athletics globally contributes to the larger discourse on gender equality in sports. Dr. Deepa Malik's recognition as a global para-sports icon significantly advances gender equality by dismantling the intersectional barriers of ableism and patriarchy. As India's first female Paralympic medalist winning silver at 2016 Rio Games, her achievements prove that women with disabilities possess equal एथलेटिक, कॉम्पिटिटिव एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज। कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड अपॉन आवर माइंडसेट ओनली। हर ग्लोबल रिकॉग्निशन एम्पलीफाइज द विजिबिलिटी ऑफ फीमेल एथलीट्स, प्रूविंग दैट सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय जेंडर और फिजिकल एबिलिटी बट द डिटर्मिनेशन एंड स्किल। It also inspires institutions to provide equal opportunities, resources, and respect to women in sport. In this way, Dr. Deepa Malik's journey not only empowers para-athletics but also strengthens the movement toward inclusivity and gender equality, ensuring that future generations of women athletes are judged by their talent rather than societal perceptions। मतलब स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में जब हम देखते हैं कि नहीं बॉयज़ को मौका मिल रहा है, गर्ल्स को नहीं मिल रहा है, या कुछ चीज़ ऐसी हैं जहाँ गर्ल्स को मौका मिल रहा है, बॉयज़ को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब प्रॉब्लम आती है उसको नहीं पता होता कि मैं कौन से जेंडर के पास जा रही हूँ, है ना। तो दोनों को अगर प्रॉब्लम सेम फेस करनी, देखो आजकल लड़के बाइक चलाते हैं, लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं, किसी के साथ भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो प्रॉब्लम को नहीं पता कि सामने वाला लड़का है या लड़की, तो फिर अपॉर्चुनिटी को कैसे पता होगा। तो सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर दीपा मलिक एक बहुत 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 बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जस्ट बिकॉज शी इज ए विमेन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं आगे कुछ कर सकती थी, है ना। तो आई होप द चैप्टर एंड ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how might Dr. Deepa Malik's thought, ability beyond disability, serve as a guideline for success for all future para athletes? जो डॉक्टर दीपा मलिक का थॉट है एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से आगे की जो एबिलिटीज है, ठीक है, कैसे वो जो हमारे फ्यूचर पैरा एथलीटिक हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है सक्सेसफुल होने के लिए। Dr. Deepa Malik's concept of ability beyond disability is a powerful reminder that physical limitations do not define an individual potential. Physical limitation किसी भी person के caliber को, किसी भी person के potential को define नहीं करती हैं। Her philosophy acts as an essential guiding principle for both current and future para athletes by encouraging several key transformations. क्या क्या? Reframing the narratives. It shifts the focus from perceived weaknesses to a deep appreciation for strength, determination and competitive skill. Building mental resilience. By focusing on possibilities rather than challenges, athletics can push past physical boundaries and build अनवेवरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटीज पे फोकस रहे, प्रॉब्लम्स पे नहीं। शिफ्टिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स।
Exceptional performances by para-athletes help break harmful stereotypes, proving that barriers only exist until they are shattered. ठीक है, चलिए next one is what have you learned from this interview and how can you implement these learnings in your life? This is really a very important question कि यहाँ से आपने क्या सीखा और उसको आप अपनी लाइफ में कैसे implement उसको कर सकते हैं. From this interview of Deepa Malik, we have learned that a physical setback is not end of journey but an opportunity to prove your strength. ठीक है कि ये ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी की एंड है. यहाँ पर आप अपनी ताकत दिखाने की, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की, आपको अपना टैलेंट दिखाने की जो है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. अब इंटरव्यू से मेन हमने क्या क्या सीखा. सेटबैक्स आर हिडन अपॉर्चुनिटीज. सेटबैक्स जो हैं वो क्या है, हिडन अपॉर्चुनिटीज होती हैं. हमें वो सेटबैक नज़र आता है बट एक्चुअली जब आप उसको समझते हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है. डॉक्टर दीपा मलिक प्रूव दैट फिजिकल और सिचुएशनल constraints do not define an individual's potential, rather severe hardships are testing ground to uncover true internal strength. Attitude overrides circumstances. When faced a life-altering tragedy, you always hold two choices: squander life in remorse or break barriers to explore a world of boundless potential. Now depend upon you. The power of support system. Support system की क्या power होती है? Overcoming deep-seated societal stereotypes and personal limitations is greatly accelerated by unconditional backing of family and peers. इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है एक पर्सन की लाइफ में. Inclusivity and respect. Sports and global platforms like the Paralympics demonstrate that physical challenges do not equate to lack of ability, forcing society to re-evaluate its preconceived bias. Fine, I hope this is clear to you now. Okay, all the questions we have done, activities also we have done. I hope the chapter is clear to you. If there is any doubt, you can let me know through the comment section. और भी आपके जो doubts रहते हैं आप मुझे comment section में बता सकते हैं. Not related to this chapter only. We have completed the explanation of all the chapters. Like in such way we have completed the syllabus of class 9. All the chapters are well explained. ठीक है, you can go and check out the playlist of class 9 Kaveri. Rest, this is a one shot series, so all the chapters we are doing with the summary, explanation, activity, question answers. So I hope this is helpful for you, and if you really liked my efforts, please like the video, share it with your friend and do subscribe the channel. Rest, I also have my WhatsApp channel with the name of same Teaching Adda 0007. You can join that as well. Okay, so thank you so much. Keep smiling, stay blessed.